Good afternoon, good afternoon, guys. We are still on biological classification. We'll complete this chapter today. I will be sending you the notes as well. So go through them, and if you have any questions, you can contact me. So we already discussed the three earlier kingdoms. We discussed kingdom Monera, Protista, and fungi. Now we're going to discuss Plantae and Animalia. So kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll-containing organisms commonly called as plants. So all of these are plants that contain, all of these are organisms that contain chlorophyll, and we commonly call them as plants. A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. So some of them are the ones who don't produce their own food, they don't have chlorophyll, and they are actually consuming other animals like the insectivorous plants and parasites. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants, and Cascata is a parasite. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall that is mainly made of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in chapter 8. Plantae includes algae, birophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. We've already studied gymnosperms and angiosperms earlier. Gymno means naked, so the ones whose seeds are naked, and angiosperms means for the ones whose seeds are covered. So, like the there is the palm tree, which has a naked seed, or you can go with a mango, which has a covered seed. Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic, that alternate with each other. The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. This phenomenon is called alternation of generation. Now, what is alternation of generation? We will obviously study this in the next chapter, but I'll just give you a small brief about about this concept. So it's very important to understand that plants, they have something called as alternation of generation. And under this alternation of generation, what you understand is that plants and algae, they have distinct stages, which are haploid sexual and diploid asexual. So they can have a stage wherein they are being gametophyte, wherein they are actually creating zygotes through sexual reproduction. And they can also be sporophytes, wherein they are creating spore and meiosis happens. And after which, what you do see is that some sort of asexual reproduction is covered. Now, a haploid spore first germinate and it grows into a haploid gametophyte. A gametophyte basically means some sort of a zygote. And at maturity, the gametophyte produce gametes by mitosis. So mitosis, as you already have studied in previous standards, is a sexual form of reproduction. Now, it does not alter the number of chromosomes. Two gametes, that is originating from different organisms, fuse to produce a diploid zygote, which develops into a diploid sporophyte. Now, this is where it changes from a zygote to a sporophyte. In this cycle from gametophyte to sporophyte, or equally from sporophyte to gametophyte, is a way in which all land plants and many algae undergo sexual reproduction. The relationship between the sporophyte and the gametophyte varies among different groups of plants. In those algae which have alternation of generations, the sporophyte and gametophyte are separate independent organisms. So they are different organisms in itself, which may or may not have a similar appearance. In liveworts, mosses, and non-worts, the sporophyte is less well developed than the gametophyte and is largely dependent on it. So what happens is these modern vascular plants, gametophyte is not as developed as the sporophyte. Sorry, sporophyte is not as developed as the gametophyte would actually be. Now, animals, they develop differently. They directly produce haploid gametes, and for animals, they don't need any specific phase wherein diploid gametes has to be created. So life cycles of plants and algae with alternating haploid and diploid multicellular stages are referred to as diploontic, haplodiplontic, diplobiontic, or dibiontic. And there is
there is this way through which this is particularly actually handled. So now I know it is a bit confusing. So let me just, give you a very small example on how exactly do you think this happens. So what actually happens here, people, is first you have spores that are released, that through which mitosis happens. Then gametophyte is created through which gametes happen. Gametes fuse and a zygote is created. Again, after which mitosis happens and saprophytes are created. Saprophytes goes through meiosis and again spores are created. So this whole is a circle that keeps on happening, and that is what is called alternation of generation. तो एक generation जो है वो diploid males का होगा, तो एक haploid males का होगा. Now what is diploid and what is haploid? So diploid means something that is created out of two different organisms, and haploid means something that is created out of one particular organism. So diploid मतलब दो organism के chromosome लेके एक zygote बना, वो zygote अपने आप में फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया और वहां से मल्टीपल स्पोर्स आए, और फिर वो अपने आप के अंदर ही मायोसिस करके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट किया. यानी कि पहले दो थे, फिर एक हुआ, फिर बहुत हुए, फिर दो थे, फिर एक हुआ, फिर बहुत थे. तो ये सर्कल जो चलता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसमें कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना. आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको क्या समझना है, प्लांटे क्या है. प्लांटे एक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है. इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बनता है. सेलुलोज यानी कि ग्लूकोज C6H12O6. और इनके पास प्रॉपर यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है. इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो हैं ये हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड फेसेस में ऑल्टरनेट करते हैं. यानी कि एक गैमेटोफाइट बनाते हैं, फिर स्पोरोफाइट बनाते हैं. ठीक है. The kingdom Animalia, ये हमारा last kingdom है आज. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. तो प्लांटे और एनिमेलिया में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एनिमेलिया के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स नहीं होते हैं, और इनमें सेल वॉल्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही बड़ा फर्क है. सेकेंडली, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड्स. एनिमेलिया कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है. इनमें कोई भी ऑटोट्रॉफिज्म नहीं है. ऑटोट्रॉफिज्म मतलब खुद का खाना बनाने की शक्ति. हमारे अंदर कोई पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में खाना खुद के बनाने की शक्ति नहीं है. हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपना खाना के लिए. They digest their food in internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have different shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Elaborate sensory and neuromotor mechanism मतलब एनिमेलिया किंगडम की जो हायर फॉर्म्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, वेल्स, इनके न्यूरोमोटर मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है. न्यूरोमोटर क्या होता है? ऐसे स्किल्स जो हमारे नर्व सिस्टम से हैंडल होते हैं. जैसे हम उंगली से चुटकी बजा सकते हैं, हम हाथ हिला सकते हैं, हम वेव कर सकते हैं, हम गर्दन पूरी तरह से मतलब यहाँ से वहां कर सकते हैं. अगर हमें डर लगे तो हम डर को फील करके भाग सकते हैं. तो ये सारे सेंसरी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सेंसरी मैकेनिज्म्स जो हैं, और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स जो हैं, ये हायर फॉर्म्स में दिखते हैं. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Salient features of various phyla are described in chapter 4. तो जितने भी फाइलम्स एनिमेलिया के अंदर है, उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक फीचर्स है वो आगे के चैप्टर में, 4th चैप्टर में समझाया जाएगा. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमेलिया में जो होता है वो मेल और फीमेल कॉपुलेशन के थ्रू होता है, यानी मेल और फीमेल इंटरकोर्स के थ्रू होता है, और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. तो एनिमेलिया किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम है. सारे एनिमल्स जो भी हैं, लिविंग एनिमल्स जो भी हैं इस अर्थ पे, वो सब एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही आते हैं. सो दैट इंक्लूड्स बर्ड्स, दैट इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, दैट इंक्लूड्स मैमल्स, एंड अंडर मैमल्स इवन वी कम, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लिचेंस. तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया है, इसमें लाइचेंस और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का जिक्र नहीं है, इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. अभी आप लोग को सबको पता है कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी सब जगह फैली हुई है. आप लोग को बता दूं कि कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस है.
जैसे कि हमारा सादा सर्दी जो होता है वो भी एक तरह का वायरस होता है। ये जो है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है ये एल्गे नहीं है, ये फंगाई नहीं है, ये एक अपने आप में अलग ही ऑर्गेनिज्म है जो कि सेलुलर नहीं है, यानी कि ये सेल बेस्ड नहीं है। क्योंकि वायरस वायरस जो होता है उसको हम पूरी तरह से लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते, और इसी वजह से इनके पास कोई लिविंग मतलब इनका कोई पर्टिकुलर 5 किंगडम में इनका एक मेंशन नहीं है, मतलब इनके बारे में कोई इनका कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। इनके लिए इनको 6th किंगडम नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इनको पूरी तरह से लिविंग नहीं कंसिडर किया जाता। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग घोषित कर सकते हैं, वो सारे के सारे ये पूरे नहीं करते। सो जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है इसके बारे में हमने किसी भी किंगडम में नहीं पढ़ा, या इवन जो कॉमन फ्लू हमको होता है जिसको हम जो हम कहते हैं ना, देखो वायरल फीवर हो गया, देखो पहले भी हम लोग कहते होंगे कि यार सर्दी खांसी अचानक से हो गई, बुखार हो गया, वायरल फीवर है, फ्लू है, तो ये जो है इसका कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो जो टोबैको मोजाइक वायरस है जिसको हम टीएमवी कहते हैं या बैक्टीरियोफेज है, ये सबके जो हैं ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे इनका डिजाइन आप देख सकते हो। तो इनके अंदर आरएनए होते हैं, कैप्सिड होते हैं, शीथ होता है, कॉलर होता है, हेड होता है। इनफैक्ट ये जो बैक्टीरियोफेज है ये तो एक तरह का रोबो लग रहा है, बट ये एक्चुअल में एक वायरस है। इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी होस्ट सेल के ऊपर जाके कब्जा कर लेते हैं और उस सेल को टेक ओवर कर लेते हैं, और इनका मेन प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करना। ये कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, डिमेट्री इवानोव्स्की ने इनको रिकॉग्नाइज किया, स्पेशली जब वो टोबैको डिजीज हुई थी तब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। और W.M. स्टैनली ने 1935 में कहा कि ये क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टल फॉर्म में भी दिखते हैं, और मोस्टली ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल पे ही हमला कर सकते हैं। होस्ट सेल के बाहर इनका कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ये अपने आप में इनका कोई लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको बाहर छोड़ो तो हवा में ये मल्टीप्लाई होंगे, या हवा में ये सरवाइव करेंगे, या इवन लैंड पे सरवाइव करेंगे, लैंड में मल्टीप्लाई होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। नहीं, ये सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करेंगे जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर होंगे, यानी कि इनको जिस पे हमला करना है, जो इनका प्रोसेस है, जो इनका पूरा लाइफ प्रोसेस है, ये तभी होगा जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर होंगे। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contains both RNA and DNA. तो प्रोटीन्स के साथ साथ इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो कि या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है। अब दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी जब सिखाया था तो मैंने बताया था कि आरएनए या डीएनए दोनों जो है वो बेसिकली प्रोटीन से ही बनता है, और क्योंकि वायरसेस जो हैं ये एक तरह का लिविंग फ्लूइड है और ये अपने आप में प्रोटीन से भरे हुए हैं, इसके लिए या तो डीएनए या आरएनए इनके अंदर होता है। सो वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए या डीएनए ये कैरी करते हैं, वो इन्फेक्शियस होता है। ये बेसिकली किसी भी प्लांट या एनिमल के डीएनए स्ट्रैंड को इन्फेक्ट करते हैं। अभी आप मेरे को बोलोगे कैसे करते हैं? अच्छा, जो डीएनए होता है वो बेसिकली एक तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब इस स्पाइरल स्ट्रक्चर में कभी कभी ओपन एंड्स होते हैं, यानी कि लूज एंड्स होते हैं, और वहां पे उस लूज एंड पे ये वायरस जो है ये जाके चिपक जाता है अपने जेनेटिक मटेरियल को लेके, और अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पे डाउनलोड कर देता है। जैसे समझो अभी आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्लेट लिया है और वो प्लेट के बीचों बीच जो है थोड़ा सा लेट्स से झुकाव है, मतलब खड्डे जैसा है, और अगर आप प्लेट के साइड में एक गोटी छोड़ोगे तो गोटी बराबर जाके उस खड्डे में ही अटक जाएगी, क्योंकि वहीं पे उसको
जगह मिलेगी रुकने का। तो ये जो डीएनए है इनका वायरस का, ये जाके बराबर उसी जगह पे जहां पे भी होस्ट डीएनए में जगह होती है या अवेलेबिलिटी होती है, ये वहां पे जाके उसको इन्फेक्ट कर देता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस are usually double-stranded DNA. The protein coat called capsid, made of small subunits called capsomeres, protects the nucleic acid. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. तो ये बेसिकली हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। हेलिकल यानी कि गोल फॉर्म में, और पॉलीहेड्रल यानी कि मल्टीपल हाइड्रा फॉर्म्स में, जैसे कि हेक्सागोन या हेप्टागोन या सेप्टागोन, उस फॉर्म में। तो ये वायरसेस जो हैं, इन्होंने बहुत सारी बीमारियां प्लांट्स को और बहुत सारी बीमारियां एनिमल्स को दी। जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना का मतलब होता है अननोन, कोरोना का मतलब होता है कोई भी, ऑल। तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये वायरस क्या है या ये क्या करता है नहीं पता, हमें इतना पता है कि न्यूमोनिया जैसे इफेक्ट्स दिखाता है, इसके लिए हमने इसको सार्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देने वाला बीमारी के नाम से इसको हमने कोरोना वायरस नाम दिया है। कोरोना मतलब अननोन। कोरोना के बारे में काफी सारे जिक्र पहले भी हुए हैं। जो भी वायरस हमें नहीं पता हम उसको ऑल वायरस का हिस्सा मान लेते हैं। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? मम्स होता है, स्मॉल पॉक्स जो देखो बच्चों को माता आती है कहते हैं वो होता था, हर्पीज जो कि एक तरह की सेक्सुअल बीमारी है, इन्फ्लुएंजा जो कि बेसिकली अभी कोरोना से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इफेक्ट्स कह सकते हैं। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो भी एक तरह के वायरस से होता है जो कि एनिमल्स में पैदा होके हमारे में ट्रांसफर हो गया। प्लांट्स में मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी चीजें जो हैं ये वायरस से होती हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू वायरॉइड्स। In 1971, Theo Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. तो वायरस भी ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, बट उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। बट वायरॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कोट भी नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, एक फ्री ओपन जेनेटिक मटेरियल लेके चलने वाला बीमारी है। इससे एक बीमारी हुई थी 1971 में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी कि आलू के जो आलू बनने से पहले जो आलू का पूरा मोटा सा ये बनता है जिसके अंदर सारे नोड्स होते हैं, उसमें बीमारी हो जा रही थी उसके वजह से। तो ये 1971 में डिस्कवर हुआ। प्रियॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BSE, commonly known as mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease, CJD, in humans. तो प्रियॉन्स जो हैं ये वायरस जैसे ही होते हैं, बट वायरस से अलग होते हैं। ये भी प्रोटीन ही होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा फोल्ड किए हुए प्रोटीन होते हैं। इनसे मैड काउ डिजीज बीमारी में जानवरों में होती है, और सीआर जेकब डिजीज जो है वो ह्यूमंस में होती है। लिचेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशंस। एल्गे और फंगाई के बीच में जो जोड़ी बनती है उसको हम लिचेन कहते हैं। ये किसी भी इसमें नहीं आता क्योंकि ये दो अलग अलग किंगडम को जोड़ के बनाता है। आप लोगों को पता है एल्गे जो है वो प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, और फंगाई जो है अपने आप का एक किंगडम है। तो बट ये लिचेंस जो है ये दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा होता है। इसका जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबियॉन्ड और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ड कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक अपने आप में होता है। आप लोगों को सबको पता है एल्गे जो है वो ऑटोट्रॉफिक है और फंगाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। तो एल्गे जो है वो फंगाई के लिए खाना बनाता है, और फंगाई जो है वो शेल्टर दे के मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है अपने पार्टनर के लिए बनाता है। तो लिचेन एक बहुत ही अजीब प्रकार का प्राणी है। ये एक तरह का एसोसिएशन है। ये ऐसा हो गया जैसे कि समझो एक दो लोग आपस में आके मिलके साथ में रहते हैं कि भाई मैं घर में खाना बनाऊंगा और तुम बाहर जाके काम करो, उस तरह का रिलेशन है, जिसमें एल्गी जो है वो अपने आप खाना बना के फंगाई को देता है, और फंगाई जो है वो पानी और मिनरल्स इकट्ठा करके एल्गे को देता है। तो दोनों एक दूसरे के बेनिफिट में काम करते हैं। लिचेन अगर कहीं पे ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब वहां पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। ये पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर लिचेन कहीं ग्रो हो रहा है तो ये साबित करता है कि वो एरिया जो है वो पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है।
ठीक है, समरी पढ़ लेंगे फटाक से. Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characters. Linnaeus later classified all living organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. Whitaker proposed an elaborate five-kingdom classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria of the five-kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationships. In the five-kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera. Bacteria are cosmopolitan in distribution. तो basically वही सब है जो अभी हमने सब पढ़ा है.